The funny thing about corporate life, you walk in thinking talent will set you apart. But within weeks, you realize everyone is talented, everyone is hardworking, everyone wants to grow. And that's when the real question hits. तो फिर मैं अलग कैसे दिखूं? In corporate life, it's rarely the loudest voice or the longest hours that get remembered. तो फिर real differentiator क्या है? Numbers. Because numbers don't argue, they prove. And here's the secret. Data isn't just for analysts or Excel professionals. Whether you are in IT, sales, HR, or operations, numbers are the one common language that gets you noticed. In this video, I will show you why data is the real power in corporate growth, why most professionals slowly lose their skill, and how you can sharpen it again to make numbers your unfair advantage. When I finished engineering in electronics and communication, I landed a job in a software company. Coding कभी भी मेरा strong point नहीं था, but numbers always gave me an edge. And here's what I noticed. If you are good at maths, coding or logical thinking doesn't feel impossible. धीरे धीरे I caught up with my colleagues. पर जल्दी ही मेरे managers ने मेरा data के साथ comfort notice किया. And that opened doors to data projects and later AI. मेरी एक दोस्त का केस और भी इंटरेस्टिंग है. उसने MBA किया फ्रॉम अ Tier 2 कॉलेज. कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी एवरेज थी, लेकिन उसका नंबर्स पे ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग था. विद इन जस्ट 2 years ऑफ हर जॉब, शी आउट परफॉर्म्ड कलीग्स फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस. द रीजन? हर डेटा ड्रिवन अप्रोच. एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू सी. डेटा मेक्स यू स्टैंड आउट. कॉर्पोरेट लाइफ में सब हार्डवर्किंग है, सब स्मार्ट हैं, लेकिन वो पर्सन जो अपने पॉइंट को नंबर्स के साथ प्रेजेंट करता है वही याद रहता है. अगर आप मीटिंग में बोलते हो दिस आइडिया कैन इंक्रीज रेवेन्यू बाय 4%, nobody can dismiss it, even if you are shy or introverted. Numbers give you the confidence to speak. और दूसरी चीज़, डेटा बिल्ड्स ट्रस्ट. ये कहना कि आई वर्कड हार्ड सिर्फ एक स्टेटमेंट है, उसमें प्रूफ नहीं है. बट सेइंग आई इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ माई कोड बाय 50%, दैट्स प्रूफ. बॉसेस डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्कड लेट, उन्हें याद रहता है द मेजरेबल आउटकम. Numbers make your work credible. And the third, most powerful part, data makes you future-proof. No matter which field you work in, the one common language that drives decisions is numbers. आज AI और automation सबको डरा रहे हैं. They can generate endless data, even dashboards, in seconds. But what they can't do is explain why those numbers matter. That bridge between raw data and real business impact वो सिर्फ humans बना सकते हैं. And that's a skill which will always keep you valuable. And remember, professionals who ignore numbers today risk becoming invisible tomorrow. That's why being good with data is no longer nice to have. It's a must-have for survival. But here's the problem. If data is so powerful, then why do so many freshers and professionals actually start losing their number skills after college? Think back to school days. जब हमने 10th के एग्ज़ाम्स दिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, तब नंबर्स और डेटा हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते थे. और इसी एबिलिटी की वजह से आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट भी मिली. बट ग्रेजुएशन के टाइम पर वही एज धीरे धीरे वीक होने लगता है, क्योंकि सिलेबस पर ज़्यादा फोकस होता है और एनालिटिकल प्रैक्टिस कम हो जाती है. और इसका इम्पैक्ट इंटरव्यूज़ में इंस्टेंटली दिख जाता है. आई हैव सीन रियली गुड फ्रेशर कैंडिडेट्स एंड प्रोफेशनल्स स्ट्रगल विद इवन बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस. जैसे इफ़ आफ्टर 25% डिस्काउंट एन आइटम शुड बी प्राइस्ड एट ₹100, देन व्हाट शुड बी द MRP? सिंपल परसेंटेज लॉजिक, बट मैनी फ्रीज, क्योंकि प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई होती है. और आयरनी ये है, ये वही लोग होते हैं जो स्कूल के टाइम पर मैथ्स में टॉप करते थे. स्किल्स उनकी ख़त्म नहीं होती, बस प्रैक्टिस रुक जाती है. और जब प्रैक्टिस रुकती है तो कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे स्लिप हो जाता है. अ स्टेप फॉरवर्ड. कॉर्पोरेट लाइफ शुरू होते ही टूल्स लाइक एक्सेल, डैशबोर्ड्स, कैलकुलेटर्स सब कुछ कर देते हैं.
पहले जो मेंटल मैथ्स नेचुरली होती थी अब मशीन कर देती है और यहीं से फर्दर नंबर्स का एज खत्म होने लगता है। इवन रिसर्च बैक्स दिस। अकॉर्डिंग टू अ जर्मन स्टडी, जो एडल्ट्स अपने करियर में नंबर्स एक्टिवली यूज़ करते रहते हैं उनकी स्किल्स 40s तक इम्प्रूव होती रहती हैं, लेकिन जो अवॉइड करते हैं उनकी नंबर स्किल्स डिक्लाइन हो जाती हैं नो मैटर द एज। दैट्स वाई यूज़ इट और लूज इट इज़ रियल। नंबर्स फेड अगर आप उन्हें कॉन्शियसली अप्लाई नहीं करते। डोंट लूज दैट एज, क्योंकि वही एज आपको क्राउडेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रूली स्टैंड आउट कराता है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू कीप दिस एज अलाइव? हियर आर 3 simple but powerful ways. Number 1, revisit the fundamentals. Percentages, percentiles, ratios, averages, probability, algebra. ये सब हर डोमेन में यूज होते हैं। फाइनेंस, कोडिंग, एनालिटिक्स, बिजनेस, एवरीवेयर। बेसिक्स को टाइम टू टाइम पॉलिश करो। गूगल अ फ्यू एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस अ लिटिल। यही बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। और सबसे ईजी वे है डेली 5 मिनट प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन पिक करो, सॉल्व करो। इफ इन जॉब, डू ऑन द जॉब प्रैक्टिस। जो भी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आपके ऑफिस के नंबर्स में यूज होते हैं उनकी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करो। नंबर 2, अप्लाई मैथ्स इन डेली लाइफ। नंबर्स को सिर्फ पेपर तक मत छोड़ो, रियल लाइफ में यूज़ करो। शॉपिंग पे जाओ तो डिस्काउंट्स मेंटली कैलकुलेट करो। जैसे अगर शर्ट 2000 रुपीज़ की है और उसके ऊपर 40% प्लस 10% ऑफ है तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा। रेस्टोरेंट में बिल स्प्लिट करना हो या अपने मंथली बजट एनालाइज करना हो, ट्राई डूइंग इट मेंटली फर्स्ट। अगर लोन लिया है तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट खुद समझो। ये छोटी प्रैक्टिसेस ब्रेन को एक्टिव रखती हैं और आपको डिस्कशंस में नेचुरल एज देती हैं। नंबर 3, यूज़ लॉजिकल सीक्वेंसिंग एट वर्क। बड़े प्रॉब्लम्स स्केरी लगते हैं क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप्स का मिक्स होते हैं। हैबिट बनाओ ब्रेक करने की। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। दिस स्ट्रेंथन्स लॉजिकल सीक्वेंसिंग, द रियल मसल बिहाइंड मैथ। और जब आप डेली नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। ऑफिस में कोई भी डेटा हैवी टास्क आए आप इजीली ब्रेक डाउन कर पाते हो और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। रिमेंबर, मैथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग एनालिटिकल थिंकिंग यानी डेटा को समझना, एंड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग यानी उस डेटा को अप्लाई करना। टुगेदर these skills make you faster and sharper at solving office challenges. At the end of the day, think of maths as mental fitness. It keeps your mind sharp, helps you think clearly और हर डिसीजन को डेटा बैक्ड बनाता है। जब आपके पास ये एज होता है तो चाहे कॉर्पोरेट प्रेशर हो, AI का इम्पैक्ट हो या कंपटीशन, you will always stand out. Subscribe now for more real, relatable career strategies. Every Friday, I upload a new video.